तो तुम 17-18 साल के टीनेजर हो, वैसे सुसाइडल रेट इतना है और तुम किसी को मुंह पे बोल रहे हो तुम फिनाइल पी लो। एक्चुअली डोंट वांट टू क्राई आउट। ओके, लड़की क्या सुन के उसकी साइड ले ली, मेरी साइड किसी ने नहीं पूछी। लाइक आई एम द बिच, आई एम द बैड गाय। लेट्स से दिस वन थिंग दैट पीपल ऑफन से कि ब्रेकअप से बहुत ज्यादा आपका दिल टूटता है, बट दैट्स नॉट रियल। अगर तुम्हारी कोई सच्ची, जिसे तुमने दिल से ऐसे लगा के दोस्ती करी हो ना, अगर वो लड़की तुम्हें धोखा दे, जो तुम्हारे पीठ पे छुरा बचा है ना, that is the thing that would actually hurt you way more than your breakup. To be honest, I'm really very unlucky when it comes to female friendships or even in friendship in general. Okay, like I'm very unlucky and मेरा कभी भी कोई भी friendship बहुत ज़्यादा नहीं चली है. There are so many reasons behind it. I'm not gonna say that the other person is only the person जिसकी वजह से सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, मेरी भी गलतियाँ होंगी, but the way they treated me actually has made me someone I can't even actually trust in friendships anymore. मुझे हर किसी के साथ ऐसे बात करने में भी सोचना पड़ता है कि व्हाट इफ इसके इंटेंशंस वैसे नहीं है जैसे ये बोल रही है या फिर whatever. And I'm so cooked when it comes to friendship. So yeah, let me just say that clear out aloud. And अगर तुम्हारी बहुत अच्छी friendships है, बहुत अच्छा friend circle है, I am literally jealous of you, girl. And yeah, I just want to share some things as a 25-year-old girl jiski school life was such a mess just because of this whole friendship drama and of my wrong choices obviously when it came to friendship, and this female in my life that actually changed my perspective on a lot of things. So I'm not going to say कि तुम दोस्ती मत करो अगर तुम बहुत छोटी लड़कियां हो जो इसमें देख रहे हो चैनल, मेरी बहुत यंग ऑडियंस है, like I have said this again and again, right? I check my analytics, so I know. So I'm not gonna say कि तुम बिल्कुल दोस्ती मत करो, friends are important, but just कीप सम बाउंड्रीज एंड थोड़ा सा अपना सेफ स्पेस रखो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के आने ना होने से तुम्हारा बहुत ज़्यादा ऐसे दिमाग खराब हो जाए कि यार आई नीड फ्रेंड्स, नहीं तो मेरे साथ कुछ हो जाएगा. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड आई एम अ गर्ल्स गर्ल. इट डजेंट मीन कि अगर मेरे साथ अच्छी फ्रेंडशिप्स नहीं रही हैं फीमेल के, तो दैट डजेंट मीन दैट आई एम नॉट अ गर्ल्स गर्ल एनी मोर. आई एम अ सर्टिफाइड गर्ल्स गर्ल. And yeah, so in today's video, I'm going to share this one incident that actually changed my whole perspective on female friendships. And I know मैंने इसके बारे में टीनी मीनी आपको इधर उधर वीडियोस में बताया होगा, but ऐसे full fledged video नहीं बताई थी because I was planning catch up with K and I was like कि इसके बारे में मैं इस वीडियो में ही अच्छे से बताऊंगी, ठीक है. So without any further buck, let's jump to the catch up with K का third episode. That is this one female friendship that actually changed my perspective on all the friendships out there. So I was with this girl in my tuition in my class 10th and 11th में we were like in the same thing because मैंने भी medical ले ली, उसने भी medical ले ली, and मेरे हिसाब से I was fully devoted to this girl because I was thinking like she's my best friend, she's my best friend क्योंकि हम इसको इतने टाइम से जानते हैं and now we are in the same class. मैं सिर्फ उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, सब बढ़िया चल रहा है, सब मस्त चल रहा है, लाइफ अच्छी चल रही है. पहले बताती हूँ, स्पॉइलर अलर्ट, आई थॉट दैट. नाउ आई एम मोस्टली क्लास 11th में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 17-18 साल की होंगी, उससे ज़्यादा मैं बड़ी तो नहीं होंगी. सो वट हैपेंड इज, नाउ लेट मी टेल यू सम स्टोरी, ठीक है. सपोज दिस इज मी, ठीक है, दिस इज हर, this is her boyfriend and this is my crush. This is number three and my crush, they were like cousins, okay. And this my friend, she was in relationship with her boyfriend which is number 3, and she was also in a past relationship with number 4. like ये दोनों cousins हैं, number 3 और 4. तो number 2 number 4 के साथ भी relationship में रही है, but right now she is in relationship with number 3. And number 1, that is me, I really had a huge crush on this, that is this number 4 guy. Number 3 guy, he is actually dating my best friend. I don't know, at this point I have no contact, nothing. I have lost my touch with her and I don't want to be in touch with her anymore. किसी को कुछ बोल ही नहीं पाती थी. अब मिलो तो मुझसे आगे भाई, अब मिलो तो मुझसे, मैं बताऊंगी तुम्हें, सबका हिसाब दूंगी. बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड, he texted me. So like we had थोड़ा बहुत बात इधर उधर because they were cousins, so he knew that I had a crush on his cousin. So we used to talk about this fourth guy, right, 4 number guy. Now this 3 number guy, what he did was randomly one day, like हमारी ट्यूशन होती थी सुबह 6 बजे, so he told me that तुम यहाँ पे मुझे पार्क के पास मिलो. And I was like really in shock कि मैं क्यों मिलूँ जब उसकी बंदी है 2 number, my best friend. So why should I, sorry, this one, yeah, if उसकी बंदी है ये, तो why should even I care about him.
और मैं नहीं गई, मैं लिटरली बोल रही हूँ। आई डोंट नो, लाइक समथिंग हैपेंड, देयर वाज सम डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड माई सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझ पे ना कुछ ऐसे फालतू का बोलने लगे कि यू आर मेरे बंदे पे तू डोरे डाल रही है, और ऐसा ऐसा उसने बोलना शुरू कर दिया। बट the whole class kind of had an idea that I had a crush on this number 4 guy. But I was like completely unaware of the fact that why is she blaming me for something that I don't even care about. Like, yeah, he was a good guy, everything, but I don't have a crush on him. I don't know who told her or what is even happening. Then what I did was that I showed her the screenshots of this 3 number guy and me, like her boyfriend and me. And I was like कि देखो ये रहे तुम्हारे screenshots, and this was not even something that I was talking about. Your boyfriend was the one that was calling me out कि randomly tuition पे सुबह 6 बजे मुझसे मिलो इस पार्क के बाहर and all that stuff. वो मुझे पसंद करता होगा, I don't know, but I don't like him at all. ठीक है? Someone told me that I am having some unwanted relationship with her boyfriend, affair चल रहा है मेरा, but it was not even true. Like, let's be real here, it was not even true, right? And like मैं सच्ची बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था उस बंदे से, बट पता नहीं कहाँ से एक तो लोगों को ना पता नहीं क्यों इतना ज्यादा कहाँ से क्या क्या बातें बनाने की पड़ जाती है आदत. Maybe I had a feeling that this guy is having a crush on me. I don't know if that was true or not, but someone told me that he had a crush on me. Okay, I was like, no. I showed her the screenshots कि भाई देख बहन, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है उसके लिए. He was asking me कि ऐसे ऐसे आओ, and then that guy texted me, this number 3 texted me कि तुमको उसको screenshots नहीं दिखाने चाहिए थे. And I was like, thing is like, I like your cousin, okay? And whole class knew. So yeah, हर किसी को किसी ना किसी पे crush आ ही जाता है. It's completely normal. You are a teenager, fucking teenager. So it's normal, right? कि तुम्हें आएगा ही, कोई ना कोई पसंद आ ही जाएगा. So this happened, and now what he did was he shot the screenshot where we were casually talking about his cousin. Okay, हम उसके बारे में ऐसे normally बात करते थे, and he used to tease me कि हाँ भाई वो ऐसा वैसा ये वो हम ऐसा कुछ बात करते थे. And now दिस 4th नंबर गाय, उसको उसने स्क्रीनशॉट दिखा दिए. एंड दिस 4 नंबर गाय जो मुझे पहले ही पसंद नहीं करता था, वो मुझसे और दूर हो गया. एंड इट एक्चुअली, मुझे मतलब उस टाइम पे दुख हुआ. ठीक है, कि मतलब क्या हो गया, मतलब मैं ऐसे नहीं थी कि मुझे उसको अपना बंदा बंदा ही बनाना है. आई हैड अ क्रश. ओके, इयरिंग गिर गया. आई हैड अ क्रश ऑन हिम, बट इट वाज नॉट लाइक कि मैं बहुत ऐसे थी कि ये बंदा बनेगा, इसी से मैं शादी करूंगी, ये ऐसा कुछ था ही नहीं भाई. मुझे बस जेन्युइनली उसका नेचर पसंद था, और उस बात का इतना बतंगड़ बन गया. आई डोंट नो, ये लग नहीं रहा है. आई डोंट नो कि क्लास में कैसे इतनी बात फैल गई, हर कोई उसको छेड़ने लग गया, मुझे छेड़ने लग गया. इतना कब हो गया मुझे तो जेन्युइनली याद भी नहीं है, बट उसको ऐसा बना दिया गया कि आई वॉन्ट टू बी इन रिलेशनशिप विद हिम, और मुझे उसके बिना सांस नहीं आती, उसको वैसा बना दिया गया. एंड आई वाज लाइक, यू नो. एंड नाउ द रियल थिंग दैट हैपेंड इज, ये तो सारा चलो बैक स्टेज हो गया सब कुछ, ठीक है. आई वाज लाइक कि अब मुद्दा खत्म हो जाएगा. अभी मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, अभी मुद्दा शुरू हुआ है. नाउ व्हाट हैपेंड इज दिस: my best friend, so-called best friend, the bitch best friend, she told every girl in the class कि she is a boyfriend stealer. ये लोगों के बंदे चुराती है. एंड आई नो, मुझे ना क्लास में हर एक लड़की ने मेरे से बात करना बंद कर दिया. whenever there was a games period, और जब किसी को बाहर जाना होता था, I was the one who was always left behind, जिसको कूड़े की तरह फेंक देते हैं. I was the one. I used to cry at home चुपके से. Nobody knew about this, not my mom, not my dad, किसी को नहीं पता है. But I used to be so लाइक मुझे स्कूल जाने का मन नहीं करता था. लोग बोलते हैं स्कूल इज द बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ, फॉर मी इट वाज नेवर. मेरे पास और भी बहुत सारी स्कूल की स्टोरीज है जिसकी वजह से मेरा ये विजन बना है स्कूल के लिए. उसके बारे में हम एक और अलग एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि वो भी बहुत लंबा बन जाएगा वीडियो, नहीं तो ये वाला, और उसका भी एक अलग एपिसोड बन सकता है. अगर तुम्हें पसंद आएगी मेरी स्कूल वाली वीडियोस, तभी मैं वो बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे फालतू में बना के तो क्या ही फायदा है, राइट. सो नाउ व्हाट हैपेंड इज कि क्लास में सारी लड़कियों ने मुझसे बात करना बंद कर दिया. एंड दे स्टार्टेड दिस रूमर दैट, मुझे ये भी किसी से सुनने में आया. पहले तो सबने पहले बात बंद करी थी करना, फिर मुझे किसी से सुनने आया कि मेरे बारे में बात फैल रही है कि आई एम अ बॉयफ्रेंड स्टीलर. उससे कोई बात ही नहीं कर रहा है. आई वाज लाइक कि मैं अपनी स्टडी पे ध्यान दूंगी और वो सब चीजें, और मैं ऐसे मुझे फर्क नहीं पड़ता ये वो, बट डीप डाउन आई वाज, ठीक है. अब मेरा उस टाइम पे एक फ्रेंड सर्कल था, सो कॉल्ड फ्रेंड सर्कल. मतलब हम सबका ही था बेसिकली, बट आई कंसीडर हर माई बेस्ट फ्रेंड. उसके अलावा भी हमारे ग्रुप में 3-4 लड़कियां और थी, मतलब वी वर 5-6 का ऐसे ग्रुप. आई थिंक 7-8 थी, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट देयर वर ऑल्सो अदर गर्ल्स ऑल्सो. नाउ उन्होंने मेरे से एक बार भी नहीं पूछा कि व्हाट इज माय टेक ऑन दिस, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या नहीं हुआ. उन्होंने बिना किसी बात के उस लड़की का सुन के उसकी साइड ले ली, मेरी साइड किसी ने नहीं पूछी.
and they were like, I am the bitch, I am the bad guy, I am the one that is to be responsible, that is to be held responsible for all the things that are happening to me. मेरा इसमें योगदान ही नहीं था कुछ, फिर भी मुझे फालतू में घसीटा जा रहा था। कुछ हो गया। अब उसके बाद क्या होता है कि दे यूज्ड टू कमेंट मी। एक लड़की ने मुझे एक दिन बोला लाइक कि तू फिनाइल पी ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। People now think that I should forget about the words that were said by them, and वो उसका ये एक्सक्यूज देते हैं कि हमें पता नहीं था कि तेरी गलती नहीं है, बट इट वॉज नॉट इवन द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव लेट यू नो आउट ऑफ योर माउथ। तुम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते तू फिनाइल पी ले, तू ये कर ले, तू वो कर ले। ये तो तुम किसी को बोल ही नहीं सकते भाई। ये क्या चीज है? तुम 11th क्लास हो, तुम 17-18 साल के टीनेजर हो, वैसे सुसाइडल रेट इतना है, और तुम किसी को मुंह पे बोल रहे हो तुम फिनाइल पी लो। I, you know, I don't want to cry. I, I actually don't want to cry out. Okay, मैंने सोचा था मैं इस वीडियो में नहीं रोऊंगी। I was all alone. Other girls were saying things about me. In the first place, तुम किसी को कैसे बोल सकते हो कि तू फिनाइल पी ले या ऐसा कुछ कर ले? I was a teenager also. मुझे फालतू में इस मुद्दे में घसीटा गया है, फालतू की चीजें बन रही हैं। यू नो, आई ऑलवेज से कि मैं इस चीज से मूव ऑन कर गई हूँ या कुछ भी, बट मैं मूव ऑन कैसे करूँ? वो चीजें मुझे ना अभी भी वापस से आ जाती है। एंड नाउ पीपल से दैट यू हैव चेंज्ड सो मच, यू डोंट टॉक टू अस। तुम स्कूल टाइम पे हमसे बात कर लेते थे, सब कर लेते थे। आई एम नॉट द बैड गाय हेयर, ओके? आई वॉज ऑल्सो अ टीनेजर, और लोगों ने मुझ पे ना फालतू की चीजें बोलना शुरू कर दिया था। इट वॉज रियली हर्टिंग एट दैट पॉइंट। आई जेन्युइनली थॉट दैट दिस इज नॉट द लाइफ आई वांटेड, मुझे जाना है यहाँ से। That's one more reason why I shifted to Chandigarh to get, you know, college और वो सब करने के लिए, because I wanted a new life. मुझे इन लोगों का दोबारा चेहरा भी नहीं देखना था। And then they act now like it's fucking okay to say these things, to say whatever out there, and then I should act normal क्योंकि बात पुरानी हो चुकी है, उनको पता नहीं था मेरी साइड। ठीक है, कोई नहीं। लाइक आई हैव दिस थिंग ना कि जब मुझे कुछ चीज़ हर्ट करती है, मैं स्पेस बना लेती हूँ। मतलब आई यू नो धीरे 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 आई गो बैक एंड आई एम लाइक कि आई एम आउट ऑफ नेटवर्क, मतलब मैं कट हो जाती हूँ लोगों से। इट्स लाइक माई थिंग ऑफ not letting things affect me. That's how I deal, you know, with all this stuff. I remember everything. Like after I cried my eyes out now, I remember what happened is that he told, she actually read his chat with me, and he defended himself, right? He defended himself कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये लड़की मेरे से बातें करती है, ऐसा ऐसा हुआ। एंड देन शी टोल्ड ऑल द क्लास दैट आई एम अ बॉयफ्रेंड स्टीलर। देन आई यू नो स्क्रीन शॉटेड एवरीथिंग, क्योंकि उसके बाद ना मेरी फिर जब उससे वो टूट गई थी तो हमारे ग्रुप में एक और लड़की थी, उससे मेरी बनी थी। And if she's you know watching this video, I know we are not in touch anymore, but you mean the world to me, okay? Things happen, we fall you know apart, but you know she actually stood by me, and that girl actually helped me out। वो मेरे साथ ही थी उस टाइम पे। मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए, आई यू नो सर्कुलेटेड दैट कि ये मेरे साथ ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहा था। एंड उसके बाद मेरी तरफ से कुछ भी नहीं था, और उसके बंदी ने सॉरी नहीं बोला आज तक। वो तब भी आगे ऐसे पत्थर दिल बन के बैठी हुई थी। एंड दैट गर्ल एक्चुअली टोल्ड हर बॉयफ्रेंड कि उसने तो स्क्रीनशॉट्स दिखाए, उसने बंदे को भी, जो उसके बंदे ने मेरे क्रश को स्क्रीनशॉट दिखा दिए कि तेरे बारे में हम ऐसे ऐसे बात करते हैं, ये तो तेरे साथ सपने देख रही है। बट मैं तो सपने देख भी नहीं रही थी। ये सब चीज़ें होती हैं। एंड उसके बाद आई वॉज लाइक कम्प्लीटली कि तू भाई बहन जा यार, मेरे को तेरे से बातें नहीं करनी, यू आर आउट, आई एम आउट। एंड द थिंग वॉज दैट हमारे ग्रुप में कुछ लड़कियां थी जिनको जो जो मुझे बोल रही थी कि हाँ भाई तेरी बहन गलती नहीं थी, है ना, ये सब, वो फिर भी उनसे बात कर रही थी और उससे टच में थी। तो मैंने फिर उनसे भी रेजिस्टेंस ऐसे बना लिया कि बहन तू भी जा, मेरे को तू भी नहीं चाहिए। तो ये सब चीज़ें हुई थी, तो इसकी वजह से I was actually like so much
यहाँ से मेरा दिमाग ख़राब हो गया था एंड आई डिडंट वांट टू डिस्कस इट ऐसे ऑनलाइन, बट आई डोंट नो लाइक इसका ना वीडियो का भी एक पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं अब डिस्कस करने वाली हूँ आपसे। लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आई नीड टू टेल यू गाइज़, ताकि आपको भी थोड़ा-सा ऐसे आइडिया रहे। हमेशा ना अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखो, किसी को अपनी लाइफ़ को कंट्रोल करने का बिल्कुल मत दो, ठीक है? और फ्रेंडशिप्स एक लिमिटेड तक ही ठीक है, उसके आगे जाने दो। अगर कुछ आपकी वो क्रॉस कर रहा है ना, उसको जाने दो। मेरी तरह ऐसे मत रहो कि तुमको उसको बचा के रखना है। अगर तुम्हारा कोई लिमिट क्रॉस कर रहा है ना, लेट लेट हर गो, और उसको जो है धक्के मार के निकालो अपनी लाइफ से, पर अपने आप से ज़्यादा किसी को ना इम्पोर्टेंस मत देना लाइफ में। इट्स सो बैड एंड या आई कांट इवन रिलेट, ठीक है? मुझे वापस उस टाइम में कभी नहीं जाना। अब तो ना स्कूल की बेस्ट मेमोरीज हैं, लाइक बेस्टेस्ट मेरे लिए नहीं है, और ना मुझे वापस से स्कूल रिलीव करना है। आई एम हैप्पी वेयर आई एम एंड आई will be happy. My college was the best period of my life. School was never, and I don't want to ever relive my college, sorry, school life again. I don't want it. नेवर एवर इन माई लाइफ आई वुड एवर वॉन्ट दैट। वैल्यूएटिंग ऐसे बैठ के एक दिन इस बारे में कि मुझे उस टाइम पे क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या चीज़ें मुझे एक्चुअली सीखने को मिली है, सो दैट आई डोंट एवर मेक अ मिस्टेक अगेन, जो मैं शायद नहीं करूँगी। मेरी स्कूल लाइफ खत्म है, आई एम नॉट अ टीन एनी मोर, आई एम अ एडल्ट, एंड मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अगर छोटे हो ना, मेरी यंग ऑडियंस हो, तुम्हारे लिए आई एम बींग वल्नरेबल, तो तुम ये चीज़ मत करना। एंड लेट मी जस्ट टेल यू सम फैक्ट्स अबाउट दिस कि इससे मुझे क्या क्या सीखने को मिला, ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा यहाँ आइडिया लग जाए। मिस्टेक दैट आई मेड was I was waiting for apology even after showing her the proof that I was not the evil person here. I was not the bad guy here. She never said sorry to me. She never apologized. Closure doesn't always come from the person who hurt you. Sometimes you need to accept that you will never get the apology you deserve. एंड इट्स सो ट्रू, मुझे उसको बहुत पहले लेट गो कर देना चाहिए था। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है ना, जस्ट डोंट वेट फॉर द अपॉलजी पार्ट। एंड द नेक्स्ट टीचिंग दैट यू नीड टू नो फ्रॉम दिस होल स्टोरी इज sometimes the painful experience make us build walls that even good people have to climb. That's why I'm so hard, you know, ऐसे लोगों को पहुंचने मेरे तक, they are like you have built this bubble around you, सीमेंट का bubble। I don't know if it's making sense to you or not, but it's genuinely true. The next lesson is never give someone else so much power that they become the author of your story. Like I was, you know, so much affected that she's not talking to me, and उसके करने से मेरे साथ ये हो रहा है, उसके करने से वो हो रहा है। मुझे उस टाइम पे ऐसा होना चाहिए था, भाई तुम सबने नहीं बात करनी ना, तुम सब भाड़ में जाओ, मुझे भी तुम लोग नहीं चाहिए। तुम लोग हो भी वैसे कौन, अभी बस स्कूल खत्म होगा, मैं वैसे भी यहाँ से चली जाऊंगी, मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम लोग मुझसे बात करते हो कि नहीं करते हो। फिर जो बोलना है मेरे बारे में बोलो। मुझे ऐसा होना चाहिए था, बट आई वॉज लाइक लिटरली क्राइंग कि मेरे से बात नहीं कर रहा है, विच इज वेरी बैड। नहीं वापिस ऐसे टाइम मशीन, डोरेमोन के टाइम मशीन में जाके से वापस जा सकती ना, तो मैं 17 साल वाली अपने उस वर्जन को, जो मेरी टीनेजर सेल्फ थी व्हेन आई वाज इन स्कूल, आई वुड हग हर एंड लेजिट से आई wasn't too much, I was not someone who did something wrong, ठीक है? एंड आई वॉज नॉट समवन हु डिजर्व्ड व्हाट हैपेंड टू मी। बस मुझे वो लोग नहीं मिले जो जेन्युइनली मेरी वैल्यू करते, जो जेन्युइनली मुझे प्यार करते, तहे दिल से बोलते हैं शायद। एंड नाउ आई डोंट होल्ड क्रचेस अगेंस्ट एनी ऑफ यू ऑल। इफ यू आर वॉचिंग, तुम में से कोई भी वीडियो देख रहा है उस टाइम से, स्कूल टाइम से, बट द थिंग इज दैट आई वॉन्ट, यू नो, लेट यू गाइज एंटर इन टू माई लाइफ बैक। मैं तुम्हें बिल्कुल जगह भी नहीं दूंगी, तुम्हें एक कोना भी नहीं मिलने वाला है। सो डोंट एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम माई साइड। बी ओपन, बट डोंट जस्ट लेट एनीवन आउट देयर, यू नो, एंटर योर लाइफ। अपना हर किसी को स्पेस मत दो। एक गलत फ्रेंडशिप हुई थी, सारी गलत फ्रेंडशिप्स नहीं हो सकती हैं, ठीक है? एंड दे डोंट डिफाइन योर वर्थ। यू आर perfectly the perfect human out there. You will find someone out there जो तुम्हें एक्चुअली सिखाएगा दोस्ती का मतलब क्या होता है, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना। आई थिंक दैट्स व्हाट फ्रेंडशिप इज सपोज टू फील लाइक। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंडशिप इज नॉट सपोज टू बी अ नाइटमेयर, इट्स सपोज टू बी अ रूम जिसमें ऐसे फुल तुम पर्दे हटाओ और ऐसे सनशाइन आ रही है ना, तुम उस पर्सन को देखो एंड यू आर लाइक कि शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज माई सोलमेट। जैसे मैडी थी ना हमारी कैसी के लिए जो थी, बस वही चीज चाहिए, यू नो। कैसी ने वैसा रेसिप्रोकेट नहीं किया, एनीवेज फ्रॉम यूफोरिया आई एम सेइंग दैट स्लैंग, बट मैडी वाज ना, दैट्स हाउ आई वांटेड माय फ्रेंड टू बी, एंड वो नहीं हुआ। बट एनीवेज आई नो दैट यू माइट हैव दैट पर्सन आउट देयर, डोंट लेट दैट पर्सन गो। प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको मेरी ऐसी और वल्नरेबल साइड देखनी है या नहीं देखनी है। एंड हम इस बारे में और बात कर सकते हैं। मेरे पास और बहुत सारी स्कूल की ऐसी चटपटी स्टोरीज है और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स है। ये सिर्फ एक दोस्त से नहीं थी, ये तो मेजर वाला हार्ट ब्रेक था। इससे पहले भी काफ़ी सारी ऐसे मेरे पास फ्रेंडशिप्स हैं जिनके किस्से हैं मेरे पास,
सुनाऊंगी। बट या नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में, एंड यू नो माय यंग ऑडियंस नीड्स टू क्लियर सम फैक्ट्स आउट देयर, सो उसके बारे में हम बात करेंगे। एनीवेज, सो सी यू गर्लीज नेक्स्ट ट्यूसडे। अपना ध्यान रखो, खुश रहो, बढ़िया रहो, मस्त रहो। So yeah, thank you so much for watching till the very end. See you girlies next time. Till then, bye.